Hello students. So today I am going to start the new topic of integration, that is applications of definite integration. In some previous video lecture we completed the important concept of integration, that is definite integration. So in definite integration we taken already the fundamental theory, fundamental concept of definite integration and their properties of definite integration, right? So there are 8 properties of definite integration. So same in integration by substitution method, by parts method, by partial fraction method. So almost in the definite integration. In substitution method we change the limits when we substitute one part is equal to t. If variable change, then we have to change the limits of the function, right? So here then by partial fraction absolutely same. There are 8 properties in definite integration, that is 1 to 8 properties. We taken all with proof, right? So in this topic, applications of derivatives, applications of definite integration. So there are application का meaning क्या है? Application means definite integration का use क्या है? Use कहाँ पर होता है? So actually there are lots of applications in the field of science and mathematics, but in this topic we taken only geometrical application of definite integration, and particularly only area under the curve, area between the curve of definite by using the definite integration. Okay, so देखो कर्व कैसा होता है. Suppose this is a curve y, कौन सा भी कर्व, ये कर्व है, x axis y axis है, intersection point is origin, and these lines, this x is equal to suppose a, this x is equal to b. So there is no any formula for this particular curve, because this is not a standard form. It is not a triangle, it is not a rhombus, it is not a parallelogram, it is not a rectangle, it is not a circle, it is not a conic section, parabola, hyperbola, ellipse, ऐसा कुछ भी नहीं है. So there is no any particular formula for this. So we can find out area of this curve under the curve, these two lines and x axis. हम इसका area find कर सकते हैं bounded by this curve, area bounded by this curve and the lines and x axis. So it is very easy. So we can find by using definite integration. हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो दिस अबाउट एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज अ कर्व, ये एक कर्व है. सो ये लिमिट्स है उसके, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. वी हैव टू फाइंड दिस. ये वाई एक्सिस का है. सपोज y इज इक्वल टू c है, यहाँ पर y इज इक्वल टू d है. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड दिस टू लाइन्स एंड y एक्सिस. सो इसका भी कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है. सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ सच कर्व बाउंडेड बाय सच कर्व बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. दिस इज द 5th टॉपिक ऑफ द सिलेबस. अब इसका कर्व कैसे फाइंड करेंगे? ये एक कर्व है, इट इज एब्सोल्युटली सर्कल. सपोज रेडियस इज सपोज x इज इक्वल टू 5 है. दिस इज द रेडियस. तो इसका एरिया हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते, बिकॉज देयर इज अ फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया हियर? 25 पाई. ये स्टैंडर्ड सर्कल है, दैट सर्कल सेंटर हैविंग द एट द ओरिजिन, दैट्स व्हाई दिस इज स्टैंडर्ड सर्कल. अगर ये सर्कल है, सेंटर एट एक्स एक्सिस, टचिंग सर्कल एट द ओरिजिन. सो अगर इसका फाइंड करना तो हमें ये पॉइंट सेंटर फाइंड करना पड़ेगा. इसके रेडियस जो भी है ये रेडियस फाइंड करने पड़ेंगे, तभी इसका फॉर्मूला, तभी इसका एरिया फाइंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं. बट we can find the area of this circle by using applications of definite integration. So what is actual process? So this is a parabola. One more example, this is parabola. Vertex at the origin, this is the vertex. Vertex means what? The intersection point of axis to the x axis. This point is called as the vertex, right? ये कर्व और एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं. And this is the latest rectum, a line passing through the focus and perpendicular to axis.
दिस लाइन इज कॉल्ड एज द लेटेस्ट रेक्टम. इसका एरिया हमें फाइंड करना है. सो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर फार्मूला फॉर दिस. इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है. सो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये पैराबोला है, ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, ये डिफरेंट सर्कल है. इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे टचिंग टू द ओरिजिन. ये तो सिंपल अलग कर्व है. ये वाई एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का है. सो ऐसे सब कर्व का एरिया हम फाइंड करेंगे बाउंडेड बाय द कर्व टू इट्स एक्सिस. एक्स एक्सिस रहने दो या वाई एक्सिस रहने दो, ये सब फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो ये दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल. अगेन सिंगल एक्सरसाइज टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग, और एक उसका मिसलिनियस भी है, और सिंगल आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन द कर्व. सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व. सो पहले हम ये देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कहां पर है, कौन से फील्ड में, वेयर वी यूज द डेफिनेट इंटीग्रेशन. देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बट इन आवर सिलेबस देयर इज अ सिंगल concept, that is area under the curve. So let us define one curve y is equal to f of x. Y is equal to f of x. That f of x is greater than or equal to 0. This bounded, this is belongs to the closed interval a comma b. This a is the lower limit, b is the upper limit. Suppose अगर ये कर्व है, ऐसा कर्व है, it has the lower limit x is equal to a, it has the upper limit x is equal to b, and this is the bounded area by the curve and the lines to the x-axis, and we have to find the area. It is very simple process to find the area, bounded area by the curve to its axis. So just we have to integrate the curve. सिर्फ हमें उस कर्व का इंटीग्रेशन लेना है. x axis, this is y axis, this is origin. The intersection point of x axis and y axis, that is called the origin. अब इस कर्व का हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व टू इट्स एक्सिस, टू इट्स एक्स एक्सिस. सो सिर्फ हमें उस कर्व को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट एरिया, ए फॉर एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी. दिस इज अ फॉर्मूला. इतना सिंपल है. इन स्क्वायर यूनिट्स एरिया, दैट्स वाई इन स्क्वायर यूनिट्स. But there is a important condition that curve must be y is equal to f of x. तो curve y is equal to y के फॉर्म में ही होना चाहिए. That is called as the explicit form में होना चाहिए. अगर explicit form में नहीं है, implicit form में है, तो हम उसको explicit form में convert करेंगे. For example, अगर curve ऐसा है, x square plus y square is equal to 9. This is a implicit form. But in this article the curve must be in explicit form, the function must be in explicit form. Means what to do? Y square is equal to 9 minus x square, y is equal to under root 9 minus x square. So ये हो गया curve. Actually it is a circle. So y is equal to root 9 minus x square. So function y is equal to f of x यही form में होना चाहिए, and this form is called as the explicit form. So this is the important condition, and the lines x is equal to a, x is equal to b, that is the limits, obviously lower limit and upper limit, and we have to integrate this with respect to x. X is equal to a, lower limit, x is equal to b, upper limit, right? So one more here. Suppose अगर कर ये फॉर्म में x is equal to f of y, x is equal to f of y with respect to y. So y belongs to c comma d, closed interval c comma d. C is the lower limit, d is the upper limit. So this is
अगेन द कर्व, अगर एक कर्व है ऐसा कर्व है एंड दिस इज द रीजन, ये रीजन है वो बाउंडेड बाय द कर्व, दिस इज द पोर्शन अंडर द कर्व, ये कर्व के नीचे का पार्ट टू द वाई एक्सिस, बिकॉज दिस इज एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इट मीन्स इट इज वाई एक्सिस। ये कर्व के जो नीचे का पार्ट है अंडर द कर्व, नीचे पर बाउंडेड होना जरूरी है, कहीं पर भी ओपन नहीं होना। सो बाउंडेड मीन्स कॉम्पैक्ट, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, एक्स एक्सिस द कर्व, सो उसमें से जो भी बीच का पार्ट है वही एरिया में फाइंड करना है। सो दिस इज द शेडेड पोर्शन। सो दिस डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, फ्रॉम दिस डायग्राम वी जस्ट आइडेंटिफाई द एरिया। So there is no any weightage, there is no any mark for the diagram, सिर्फ हम उसको हमें रफ स्केच करना है, कोई स्पेस स्केल निकाल के पेंसिल इरेजर ऐसा कुछ भी नहीं करने का, सिंपल डायग्राम निकालने है। सिर्फ वो कर्व आइडेंटिफाई होना जरूरी है, वो कर्व कौन सा है, उसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, वो डिफाइन होना जरूरी है। सो ये एरिया फाइंड करना है। सो अगेन दिस इज y इज इक्वल टू c, दिस अपर लिमिट y इज इक्वल टू d। सो ये एरिया from C to D, f of y dy. So this is the area with respect to y axis, again in square units, again not square units. So this is the area bounded by this curve. This curve is x is equal to f of y. Again this curve must be x is equal to, ये x is equal to होना जरूरी है, मीन्स एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना जरूरी है। एक इम्प्लिसिट फॉर्म में है तो उसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस वे। एंड हियर एवरी टाइम दिस लाइन्स आर नॉट गिवन, y इज इक्वल लिमिट्स नॉट गिवन, कभी लिमिट्स गिवन नहीं होते, वो हम स्टैंडर्ड डायग्राम से, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से, ज्योमेट्रिकल वे से हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। हाउ टू डिफाइन दैट? सपोज दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है। अब ये सर्कल है तो स्टैंडर्ड सर्कल है, सर्कल एट द सेंटर एट द ओरिजिन, राइट, बिकॉज x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर मीन 0 0 इज द ओरिजिन, दैट इज द सेंटर। दिस रेडियस 9 मीन्स 3 स्क्वायर, सो दिस इज द 3 पॉइंट 3,0, दिस इज ओरिजिन। अब यहां पर तो लिमिट्स नॉट गिवन, लिमिट्स गिवन नहीं थे, सो हम 0 to 3 हम लिमिट्स ले सकते हैं। 0 इज द लोअर लिमिट, 3 इज द अपर लिमिट, बिकॉज x इज द एक्सिस, इसका एक्सिस x एक्सिस है। सो सिर्फ इतना एरिया फाइंड करेंगे, बिकॉज दिस इज एरिया बिलो द कर्व, अंडर द कर्व, ये कर्व है, ये कर्व, एंड डेफिनेटली दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट है एरिया अंडर दिस कर्व 0 to 3। अब लिमिट्स 0 to 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बट ये तो स्टैंडर्ड डायग्राम है, सर्कल का फॉर्मूला नोड है, आप स्कूल लेवल से सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। डेफिनेटली इसका आंसर 9 पाई यही आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स, बट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट डेफिनेटली 9 पाई ऑफ दिस कर्व, राइट। अब सिर्फ हम इसको क्या करना है, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज सब एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। सो 4 टाइम्स दिस, इतना फाइंड करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द total area bounded by the curve, that is curve is a circle. So this is the first article, area under the curve। सिर्फ आपको क्या करना है, उस कर्व को इंटीग्रेट करना है with respect to x or with respect to y. It depends the given terms, it depends the given geometrical condition. If they are given x belongs to a comma b, this y belongs to c comma d, it means with respect to x, it means with respect to y। सिर्फ दैट कर्व इज इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना ही जरूरी है। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिलो द कर्व। ओके,
Now let us see the second article of the topic, that is area between the two curves. So we have to define the equation of curves. So first write the article, that is second article. Area between टू कर्व्स, दो कर्व में का बीच का जो बाउंडेड पार्ट है बाय दैट टू कर्व्स, दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया. सपोज y is equal to f of x and y is equal to g of x. Both f of x and g of x are greater than or equal to 0, positive curve. And we have to, these are the equation of curve. We have to find both the curve are in explicit form. Left hand side में y होना जरूरी है. So y is equal to f of x, y is equal to g of x. These two curve intersect each other at a point a comma b. Means x is equal to a, x is equal to, these two are the intersection points. ये intersection point हमें find करना है by solving these two इक्वेशन साइमल्टेनियसली. जो भी दो कर्व है, कौन से भी होने दो कर्व, पैराबोला सर्कल होने दो, सर्कल पैराबोला, दैट इज पैराबोला एंड सर्कल, और दो सर्कल के बीच का एरिया. सो सिर्फ दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? सो हियर दिस इज अ y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. समझो पहला कर्व ये है, y इज इक्वल टू f ऑफ x. ये g ऑफ x है, सेकंड कर्व है, y इज इक्वल टू g ऑफ x. और ये दूसरा कर्व है, y इज इक्वल टू f ऑफ x. दिस टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a. दिस इज द लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू a. दिस इज द अपर लिमिट, x इज इक्वल टू b. एंड दिस इज द पोर्शन, दिस इज द रीजन bounded by these two curves, bounded by these two curves. Y is equal to f of x and y is equal to g of x. Again I repeat the important statement, that is what, that curve must be that equation must be explicit form. कर्व का इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना चाहिए. ये एरिया फाइंड करना है. सो एरिया बिलो द कर्व, पहला जो कर्व f of x, इस कर्व का बिलो का पोर्शन में से जो ब्लैंक पोर्शन आपको दिख रहा है वो g ऑफ x का अंडर है. सो एरिया ऑफ कर्व f ऑफ x माइनस एरिया ऑफ कर्व g ऑफ x. f ऑफ x का एरिया फाइंड करो, उसमें से माइनस ये जो ब्लैंक पोर्शन किसके अंडर है, वो g ऑफ x के अंडर है. सो दैट्स व्हाई f ऑफ x माइनस g ऑफ x. आज गलती से रॉन्ग भी हो गया है, g ऑफ x माइनस f ऑफ x भी होगा है, तो एग्जैक्टली चेंजेस ओनली इन साइन, सिर्फ साइन में चेंज होगा. आंसर शुड बी इन पॉजिटिव. एरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी है. सो दिस एरिया शुड बी area. Limits are given, that is known, not given, known, because intersection point हमें find करना है. A to B, f of x minus g of x dx. f of x minus g of x. Write in modulus sign, positive होना जरूरी है. So this is the area in square units. f of x minus g of x. f of x means what? This area under the curve f of x minus this blank portion जो आपको दिखता है वो किसका है, g of x का अंडर है. सो वो माइनस कर दो, ये ब्लैंक पोर्शन माइनस हो गया, तो डेफिनेटली जो इसको मैंने शेड किया है, लाइंस ड्रॉ किया, वो दो जो उसका एरिया फाइंड होगा बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. सो एवरी टाइम माइनस ही होना कंपल्सरी नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये लाइन का एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया अंडर द लाइन. सो गिवन दिस इज x इज इक्वल टू -1 एंड हियर वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू 5. इतना एरिया फाइंड करना है. सो दिस इज द पोर्शन, एरिया अंडर द लाइन. अंडर द लाइन मीन्स टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ अंडर होता है. ये लाइन के अंडर कौन सा है, इस लाइन टूवर्ड्स द ओरिजिन. सो -1 to 0 लेंगे और 0 to 5 लेंगे. एरिया
-1 to 0 f ऑफ x, जो भी इसका इक्वेशन होगा, प्लस 0 to 5 लेंगे, 0 to 5 f ऑफ x dx, जो भी लाइन है ये, so, इसको ऐड करेंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमें y इज इक्वल टू साइन x का एरिया फाइंड करना है. x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई. सो आपको पता है साइन x का कर्व कैसा होता है. साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई ऑल्सो 0. सो हमें फाइंड करना एरिया फ्रॉम 0 to 2 पाई. सो डायरेक्ट 0 to 2 पाई नहीं फाइंड करेंगे, हम 0 to पाई फाइंड करेंगे पहला, और पाई टू 2 पाई फाइंड करेंगे, और दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया. पाई टू 2 पाई. कर्व तो फंक्शन तो बहुत सिंपल है, कर्व सिंपल है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में इक्वेशन है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है. पहले 0 to पाई पुट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स. इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द कर्व. कर्व कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा. f ऑफ x माइनस g ऑफ x, दिस इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. और एक ही कर्व है लेकिन -1 to 0 लेना पड़ेगा, ये कर्व, उसके साथ उसको ऐड करना पड़ेगा यहां से आगे, ये पूरा 0 to 5. इज इट क्लियर? सो दिस इज द एक्चुअल रिक्वायर्ड एरिया, हमें वही फाइंड करना है. यहां पर एक ही कर्व है, साइन एक्स ही है. अगले एग्जाम्पल में ये साइन एक्स, साइन एक्स का तो ये कर्व है 0 to, ये पाई बाई 2 होता है, 0 to पाई बाई 2. ये 3 पाई बाई 2 होता है. यहाँ पर 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, दिस प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. So this is the procedure to actual. So this diagram is just for identify, just for rough sketch of that area. सिर्फ हमें वो जजमेंट आना चाहिए कि एक्चुअल एरिया कैसा है. ओके, वन मोर. सपोज दिस इज अ y एक्सिस, x एक्सिस. एक ये कर्व है, दूसरा कर्व ये है, राइट. इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें फाइंड करना है बाय सॉल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. यू विल गेट द intersection point of these two curves. Suppose here I consider here the lower limit is c and upper limit is d. C and d are the intersection point of this curve. So ये होगा x is equal to f of y and ये है x is equal to g of y. f of y under minus g of y under. ये space है. This is the area under the curve x is equal to g of y, and this from this to this is the area under the curve x is equal to f of y. So required area is a f of y minus g of y dy with respect to y from c to d. Write in modulus phi because we should write the area in positive. So प्लस ही होना चाहिए. ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है. एरिया बिटवीन द टू कर्व्स f of x minus g of x. दैट इक्वेशन ऑफ दैट कर्व मस्ट बी इन एक्सप्लिसिट फॉर्म. फंक्शन कौन सा होना चाहिए? एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना चाहिए. ये दो एग्जाम्पल है, ये और एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एडिशन किया है. सो ये सब डिपेंड होगा एग्जाम्पल कौन सा है, उसके कर्व कौन से हैं, एरिया कहाँ से कहाँ तक है, राइट. समटाइम्स देखो अगर सर्कल और लाइन है, ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, सेंटर एट द ओरिजिन. x² + y² इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and one line is given, x plus y is equal to 1, x plus y is equal to, this is a circle, standard unit circle, radius also 1. लाइन, इस लाइन का ग्राफ ऐसा होगा x is equal to 1, y is equal to 1, ये लाइन x plus y is equal to 1. अब रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? एक सर्कल और लाइन का बीच का जो दोनों ने बाउंड किया हुआ पोर्शन कौन सा है? ऑब्वियसली दिस. सो ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम इससे क्लियर होता है वो एरिया कौन सा है, बाउंडेड पोर्शन कौन सा है. इज इट क्लियर? सो इट इज वेरी इजी. 0 to 1 सर्कल में से लाइन का एरिया माइनस करो, एरिया बिलो द सर्कल माइनस एरिया बिलो द लाइन. दो पैराबोला है, ये राइट साइड का पैराबोला वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ये अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला वर्टेक्स आल्सो एट द ओरिजिन, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, बाउंडेड बाय दिस टू कर्व. सो ये एरिया हमें फाइंड करना है. सो ये जो पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. राइट साइड का जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. ये अपवर्ड डायरेक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, राइट साइड डायरेक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस टू कर्व्स. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जरूरी है इक्वल होना, एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना चाहिए. ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये नहीं है. सो वाई इज इक्वल रूट एक्स हो जाएगा. यहाँ पर लोअर लिमिट तो ऑब्वियसली 0 है, बिकॉज बोथ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन. सो दैट्स व्हाई दिस इज 0, राइट. सिर्फ हमें एक अपर लिमिट फाइंड करना है. ये अपर लिमिट अगर हमने फाइंड किया, सो दैट विल बी व्हाट? एरिया बिलो दिस पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एरिया बिलो दिस पैराबोला. पहले तो ये भी एरिया पैराबोला y इज इक्वल रूट एक्स माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो ये ब्लैंक पोर्शन अगर माइनस हो गया तो डेफिनेटली एरिया हम ये फाइंड होगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स. इज इट क्लियर? इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ऑब्वियस है, बिकॉज बोथ पैराबोला आर स्टैंडर्ड फॉर्म वर्टेक्स एट द ओरिजिन. सिर्फ ये पॉइंट हमें फाइंड करना है. सो ये सब थ्योरी है, इतना है एरिया बिटवीन द. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत, बट हमारे ज्योमेट्रिकल जो कंसेप्ट है, जो फिगर है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और जो भी लाइंस का, उसका आइडिया ऑलमोस्ट क्लियर होना जरूरी है. हर एग्जांपल में लूंगा, एक ही एक्सरसाइज है और उसके साथ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है. ईच एंड एवरी एग्जांपल विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बट ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये तो बाकी एग्जाम, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है. ये दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट. इन स्क्वायर यूनिट्स इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे? दोनों भी कर्व साइमल्टेनियस, दोनों कर्व की जो इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करना है. अब सॉल्व कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल में दिखा. तो यहाँ पर ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये जो y इज इक्वल टू रूट एक्स है. y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीन्स y इज इक्वल टू रूट एक्स. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? सेम है, मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 आ गई. दूसरी वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे. x की वैल्यू कितनी आएंगी? 1. 3 तो इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल नहीं है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला a माइनस बी, बाकी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं. एक 0 आ गया, एक 1 आ गया, मीन्स ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज व्हाट? x इज इक्वल टू 1. 0 है, 1 है. सो ये इंटरसेक्शन, ये यहाँ पर लाइन्स x इज इक्वल टू 1, 0 to 1 ले लो. ये पैराबोला कौन सा है? y इज इक्वल रूट एक्स है. सो ये एरिया कितना आएगा? रूट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 to 1 लेना है. सो लिमिट्स हमें फाइंड करना है. लिमिट्स नेवर गिवन, लिमिट्स कभी दिए नहीं जाएंगे. लिमिट्स हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग
by solving the equations of curve simultaneously. Okay, अब ये दोनों इसको कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y is equal to 1 minus x. So this is y is equal to under root 1 minus x square. So 1 minus x into under root 1 minus x square. ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड आप सॉल्व करो. बट हियर ऑब्वियस थिंग इज व्हाट, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, इसका ये जो रेडियस है वो कितना होगा, 1,0 होगा. वर्टेक्स सॉरी ओरिजिन सेंटर में है, सेंटर ऑफ सर्कल इज एट द ओरिजिन, सो 0 0. सो 0 to 1 डायरेक्ट ले सकते हैं, इसका लिमिट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर फाइंड भी किया तो यही आ जाएगा. मीन्स व्हाट, इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. सर्कल लाइन, सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, बिकॉज रेडियस इज 1, सेंटर एट द ओरिजिन मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. सो ये सब डिपेंड करेगा उसके ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे, जो भी कर्व दिया है वो कौन सा कर्व है. सो दैट्स व्हाई डायग्राम जरूरी है निकालना, लेकिन डायग्राम को कोई वेटेज नहीं एग्जाम में, इट हैज नो एनी वेटेज. आप रफ डायग्राम भी निकाल सकते हैं, जस्ट ड्रॉ करो, पॉइंट ड्रॉ करो, उसको शेड करो, लिमिट्स कौन सा है वो डिफाइन करो. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, applications of definite integration. So actually there are lots of applications in the various field of science and mathematics, but in our syllabus the single application, that is the area under the curve or area below the curve. So in next video lecture we will take the examples, actual examples, that is exercise 5.1. okay, so thank you very much.